ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान who's been on the show before as well, I believe once, दो बार ना, but after a while he's back. Third season में नहीं आए थे I think, but we have him here again. We have with us today Hussain Nadeem, who formerly was the chairman of IPRI, executive director of IPRI, and then now he's a fellow at Transformation of the Human. It's an AI startup based out of Silicon Valley. Sir, thank you so much for being part of the show. My pleasure to be here again. मुझे थोड़ा सा ये बताएं, because obviously दो बड़ी parallel areas हैं. एक IPRI, very hardcore sort of think tank, and I know you worked in the उसका अपना एक G5IO का data analytics का area था, and now you're working in AI, some cutting edge work that you're doing. So how did that shift happen? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली, बिकॉज मेरे सारा जितना भी पढ़ाई वगैरह थी वो थी पॉलिटिकल साइंस, सिक्योरिटी स्टडीज़, हार्डकोर उसमें, एंड देन काम भी ज़्यादा पॉलिसी में किया हुआ था गवर्नमेंट के साथ. बट आई थिंक स्टार्टिंग 2019 जब मैंने ये G5IO बनाया था, आई सॉ वन चेंज, एंड दैट वाज दैट के द वे वी वर रनिंग थिंग्स, पॉलिसी एज यूजुअल कुड नॉट वर्क. So evidence-based decision, data science tools and new technology tools had to be embedded. So जब मैं PhD करके वापस आया हूँ ऑस्ट्रेलिया से, तो बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई वेयर द पॉलिसी वर्ल्ड वाज अंडरगोइंग एक ट्रांसफॉर्मेशन. तो इस वजह से मैंने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा साइंस के अंदर काफ़ी काम शाम किया विद द गोल के वी स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन सम एविडेंस एंड डेटा, खासतौर पर नेशनल सिक्योरिटी साइड पे. बस वो पर जब टेक्नोलॉजी की एक बार लत लग गई, तो देन आई रियलाइज दैट the game is much bigger than just the national security or policy, and then I wanted to work much more on the tech side. Ended up in the Silicon Valley. ज़बरदस्त. उसके ऊपर मैं आऊँगा, the tech side of things, but I want to first of all understand, because आपने ज़ाहिर पॉलिसी के ऊपर इतना क्लोजली काम किया था. Last 1 year a lot has happened in the country. That's an understatement. And for a lot of people right now, they're trying to figure out or make sense of what has happened, and through that maybe begin to understand what might happen in the future. In a lot of ways, you know, recently I had Javed Hassan on the show, and the picture that he painted in terms of the economy was not pretty. हो सकता है हम डिफ़ॉल्ट कर जाएं. People still don't understand what that entails. You know, वो कहते हैं यार चलो श्रीलंका में हुआ था तो 2-1 दिन थोड़े लोग निकले, उसके बाद कुछ चल ही रहा होगा, खामोशी आई भी है. But it means radical lifestyle changes, right? And economy is just one. मुझे honestly, मैं पिछले 2-3 महीने में अगर मैं देखूँ ना, अभी रिसेंटली F9 पार्क में रेप हुआ और बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट्स हुए. It's not just an economic collapse, it's a social, moral, political. I think on across all indicators, we're on a free fall right now. And so explain to me, how do you see the chaos right now? Like, what's going on? Because it's very difficult to make sense of it. I'm going to start with जो आपने बात की है ना, we're in a free fall. We're definitely in a free fall for some years now. The question really has been for the past, I would say, decade or more. For the decade or more, question really has been कि free fall में तो है, क्या लैंडिंग सॉफ्ट बीच पे होगी या रॉक्स पे होगी? दिस इज़ व्हाट वी रियली हैव टू डिसाइड राइट नाउ. लास्ट 1 year के अंदर जो इवेंट्स हुए हैं, डिलेज हुए, जो प्रॉब्लम्स आई, वो सॉफ्ट लैंडिंग जो बीच पे होनी थी, वो डायरेक्शन चेंज होके रॉक्स पे जा चुकी हुई है. बट व्हाट देन एक्सप्लेन्स होना है कि irrespective था, होना है ज़्यादा, इट्स गोना बी मोर पेनफुल नाउ. रीज़न बिकॉज कि 70 years, और ये अभी से नहीं स्टार्ट हुआ हुआ, आर प्रॉब्लम्स गो बैक 70 years. आर जेनेसिस इशूज़, हाउ वी वर क्रिएटेड, वाई वी वर क्रिएटेड, what story we told ourselves, who were the people who led us, how they behaved, were the policies pro-people, were the policies pro-elite, the whole elite capture. Elite capture did not start 10 years back, 15 years back. एलीट कैप्चर उस दिन से स्टार्ट हुआ था जिस दिन आपकी स्टेट फॉर्म हो चुकी थी. प्रेटोरियन ओलिगार्की हम उसको कहते हैं. एक ट्रॉयका आपका इमर्ज हुआ था, विच वॉज द DMG ग्रुप, द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एंड द फेडरल एरिस्टोक्रेसी. सो वो ट्रॉयका जो है वो आज तक आपका वही ट्रॉयका चलता आ रहा है. उसके अंदर सिर्फ एक्टर्स चेंज हो गए, कुछ तो एक्टर्स भी नहीं चेंज हुए, बट मोर और लेस जो वो रॉड था वो एक टाइम के ऊपर जाके सस्टेनेबल नहीं रहना था, और वो अब कोलैप्स हो रहा है. अब हमारा कोशिश ये थी कि सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती, मगर जो नज़र आ रहा है वो ये कि हार्ड लैंडिंग होगी, अब इमिनेंट है हार्ड लैंडिंग. थिंग्स कैन स्टिल चेंज, थिंग्स कैन ऑलवेज चेंज.
every single minute, but only when there are indicators of change. इस वक्त सबसे बड़ा हमारा फंडामेंटल जो चैलेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो एक थॉट प्रोसेस ऑफ चेंज है वो नहीं हो रहा. देयर आर नो पीपल जो कि बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि हमने डायरेक्शन चेंज करनी है. डायरेक्शन जो जा रही है उसको एक्सेलरेट किया जा रहा है और फर्दर वहाँ पे इंड्यूस किया जा रहा है. बट व्हाट एक्सप्लेन्स दिस कियोस? मैं थोड़ा सा जो है ना तो डिफरेंट वर्जन देना चाह रहा हूँ, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑन सोशल मीडिया, आई सी अ लॉट ऑफ डिबेट्स जो मीडिया पे चलती हैं. समहाउ हमने अपनी सारी जो डिबेट है ना केओस की, इस क्रिएटिव केओस की, वो रिड्यूस कर दिए ऑन पर्सनैलिटीज़. बिकॉज एज अ ह्यूमन ब्रेन हमारे लिए बड़ा आसान होता है समझना कि यार PTI, PMLN, PPP, फौज, इमरान खान, ABCD. एट द कोर ऑफ इट थोड़ा सा ज़रा आप स्क्रैच करें ना सरफेस को, तो यूल रियलाइज दैट इट्स वेरी लेस टू डू विद द इंडिविजुअल्स दैट आर ऑन प्ले. अगर आप इन इंडिविजुअल्स के नाम मास्क कर दें और हटा दें तो यूल रियलाइज के नीचे जो चेंज आ रही है, जो वॉल्केनो है, वो इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. और उसके नीचे जो दो चीज़ें आपकी आ रही हैं, वन इज़ आर डेमोग्राफ्स, कि आपकी देखें एक पॉपुलेशन के डेमोग्राफ्स चेंज हो चुके हैं. 70% ऑफ द कंट्रीज राइट नाउ अंडर द एज ऑफ 30. उनकी ड्रीम्स और हैं, जनरेशन और है, उनकी इंटरप्ले ऑफ टेक्नोलॉजी डिफरेंट है. एंड सेकेंड थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी आई है वो ये हुई है कि एक एक्सप्लोसिव चेंज आई है टेक्नोलॉजी में. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आप पिछले 5000 साल की ह्यूमन हिस्ट्री देखें तो टेक ग्रोथ जो है आपकी या कोई भी चेंज है वो फ्लैट लाइन ऐसे चलती भी जा रही है. आयरन एज आई, एग्रीकल्चर एज आई, आहिस्ता आहिस्ता से चेंज आई. सो द सोसाइटीज़ एडेप्टेड. लास्ट 10-15 ईयर्स में जो हुआ है वो ये हुआ है, सोसाइटीज़ वर नॉट प्रिपेयर्ड. एक्सप्लोजन ऑफ टेक्नोलॉजी हुई, डिजिटल टेक्नोलॉजी आया, इंटरनेट आया. आज से 15 साल पहले मैं यूनिवर्सिटी में था, देयर वाज नो व्हाट्सएप. 20 साल पहले इंटरनेट नहीं था, घर में कंप्यूटर आपके जो थे वो बिल्कुल ही आपको पता कैसे होंगे. सो 20-30 ईयर्स में जो चेंज आया है सिर्फ इंटरनेट में, इट इज़ एक्सप्लोसिव. बट उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात अगर देखें, 100 साल पहले देख लें, जहाज़ बेरली थे आपके, अब जहाज़ आ गए. अगर कोई बंदा 100 साल पहले आज से सोया हो और वो उठे आज, ही विल बी इन समवेयर एल्स. बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आप 100 साल की बात करें, सो बड़े एक इंटरेस्टिंग मैं आपको बताता हूँ. मुझे कॉल आई एक दिन, मैसेज आया एक्चुअली एक साहब का, और उन्होंने कहा कि यार मैं आई एम दिस पर्सन, और अपना एक विकीपीडिया का एक लिंक भेजा. रैंडम नंबर से आया, तो मैं जनरली चेक नहीं करता. जब उन्होंने विकीपीडिया लिंक भेजा ना, तो मैंने कहा यार ये कौन साहब हैं जो जिनका विकीपीडिया पेज है और मुझे मैसेज कर रहे हैं. When I clicked on it, तो आई फाउंड आउट कि ही वाज समवन. अभी रिसेंटली आपने सुना होगा गुआंटानामो से अभी तो लास्ट वीक निकले, उससे पहले एक ओल्ड एज साहब निकले थे, वो उनका बेटे थे ये. 22 साल ये वहाँ गुजार कर आए हैं. तो मैंने इनको खैर कॉल करके मैंने कहा जी क्या है. उन्होंने कहा वो बेसिकली ही वाज लिसनिंग टू द पॉडकास्ट वेरी एक्टिवली, बिकॉज वो कह रहे थे कि जी मैंने पाकिस्तान को अब वापस समझना शुरू किया है, तो मैं आपकी पॉडकास्ट से इंडस्ट्रीज़ को देख रहा हूँ. उन्होंने मुझे कहा 22 साल में आप सोचें गुआंटानामो बे. I can imagine. He was like, for 22 years I was in solitary confinement. I didn't say anything. I didn't hear anything. All I saw was two colors, white and brown. And when I got out, मुझे colors चुभ रहे. I couldn't make sense of the vibrance of colors. The world had changed. Yeah. But more than that, I couldn't make sense of everything. Like it's like I'm on a different planet. Absolutely. Which is one of the most interesting things. If you look at today, our present, the technology R&D right now in today's world is stranger than the fiction of our times. जो fiction है ना वो इतनी अब strange नहीं रही जितनी हमारी actual tech reality आपकी हो चुकी है. Which is fascinating. So point I'm trying to make over here is कि जब इतनी radical change जो आपकी आई है ना, उसकी जगह से जो जड़ें थी ना आपकी of कंट्रीज दैट हैड नॉट रिफॉर्म्ड, हमने तो ब्रिटिश एरा से रिफॉर्म ही नहीं किया ना. जो कंट्रीज ऐसा ऐसा रिफॉर्म कर रही थी, ऑस्ट्रेलिया, UK एंड ऑल ऑफ दैट, दे वर अडैप्टिंग टू टेक्नोलॉजी. आर्स वाज अ कंट्री दैट नेवर अंडरटुक रिफॉर्म. सो हमें रिफॉर्म्स के डिले की वजह से जब टेक्नोलॉजी का प्रेशर पड़ा है तो हमारी जड़ें नीचे से टूट गई एक तरह से. अब हो क्या रहा है कि जंग आपकी इमरान खान, PTI या XYZ की नहीं है. जंग सिर्फ एक है, ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल, ओल्ड वर्सेस यंग. इन दो के अलावा आपकी कोई जंग नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में. आपने सिर्फ ये देखना कि जंग जीतेगा कौन, हु स्टैंडिंग बाय द डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी, किसकी अच्छी टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट और किसके साथ यूथ खड़ी है. दैट इज इट. वो चाहे इधर होगी तो इधर जीतेंगे, वो होगी तो उधर जीतेंगे. सो वी टेंड टू फोकस ऑन इंडिविजुअल्स एंड पर्सनैलिटीज. Really, if you look at the last 5,000 years of history, it's all about the battle of ideas. और battle of ideas में the most innovative ideas always win. 100%. मुझे अगर आप टेक्नोलॉजी से चलें, इट्स द मोस्ट रीसेंट इंडिकेटर दैट इज़ एडिंग द ट्रांसफॉर्मेशन. मैं 2-3 इसमें और फेंकता हूँ.
वेरिएबल्स। एक तो ये कि करंट क्राइसिस के अंदर सिर्फ पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा, लेबनान में मोस्ट रिसेंटली हमने देखा, इजिप्ट इज़ गोइंग थ्रू समथिंग वेरी सिमिलर, श्रीलंका का हमने देखा, इवन काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे बंगला कर रहे हैं कि बांग्लादेश का बड़ा गुड सीन है। बांग्लादेश के आप कोर फंडामेंटल्स देखें तो उनका भी बड़ा अप एंड डाउन हो रहा है। वो IMF के पास थोड़ा पहले चले गए, उनके थोड़े रिजर्व्स बेहतर थे, उन्होंने अपने उसको कंट्रोल नहीं किया, बट उनके साथ भी ये हो रहा है। मैं आज पढ़ रहा था साउथ अफ्रीका, इफ़ यू बीन फॉलोइंग, you know, South Africa में there are 80 murders a day. It's been like that for a while. It's a very dangerous place. It's 12 hours of power cuts and it's वो कह रहे हैं जी वो it's on the verge of collapse the entire वो and so ये जो हो रहा है ना, it's a changing tide around the world. एक हमेशा इस तरह का टाइम आता है और वो बड़ी एक अच्छी रे डालियो की एक वीडियो भी है चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर। एक दुनिया का यूनिपोलर से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहा है, इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो रही है और उसके अंदर जाहिर है कि वो जब शिफ्ट आता है तो शिफ्ट के अंदर हमेशा इस किस्म के मसाइल आते हैं। वो हमने World War I में भी देखा, World War II में भी देखा, वो चीज़ इमर्ज होती जा रही है। इन अ लॉट ऑफ वेज अनफॉर्चुनेटली वी आर राइट एट द थिक ऑफ इट कि हमारे अपने इतने सारे मसले थे कि एज द एंटायर वर्ल्ड इज शेक्स इटसेल्फ एंड कन्वर्ट्स, तो हमें तो समझ ही नहीं आ रही। एक तो ये, दूसरा चलें टेक्नोलॉजी तो मैं अगर कहता हूँ कि करंटली है, बट चेंज और रिफॉर्म तो हिस्टोरिकली आता रहा है। डेवलपिंग वर्ल्ड मोर ऑफन देन नॉट वाज क्लोज्ड अप, डेवलपिंग वर्ल्ड वाज हैड एलीट कैप्चर, हैड करप्शन। एशिया में अनगिनत कहानियाँ हैं ऐसी, इंडिया की, इंडोनेशिया की, तुर्की की, कोरिया की भी, यू नो, इन लॉट ऑफ वेज। आपने उनके उस पर क्या देखा जब उनके रिफॉर्म्स आए? मैं अगर इंडोनेशिया की बात करूँ, वेरी 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 सिमिलर टू व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान राइट नाउ। 91 में इंडिया को देखें, वेरी सिमिलर टू व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान राइट नाउ। एंड ऑनेस्टली आई फील लाइक अगर उस वक्त कोई एनालिस्ट होता और वो इंडिया की हिस्ट्री देख रहा होता या वो इंडोनेशिया का देख रहा होता, इंडोनेशिया और टर्की में तो खासकर जो हमारी जो पावर सेंटर्स हैं वो उनकी भी एक जंग थी ना, इंडिया में तो वो मसला नहीं था। तो वो वाली जंग जो है, जो कि हिस्टोरिकली हमेशा रही है, वो तुर्की में टुक अ वाइल, चलो इकोनॉमिक क्राइसिस 01 में आया, 16 में वो एक डीकपलिंग हुई, इंडोनेशिया में तो 98 में ही हो गया। उससे उसको देख के आप क्या सीखते हैं? क्या आपको समझ आता है कि पाकिस्तान में पोटेंशियली क्या हो सकता है? यार जो एग्जांपल्स दिए हैं ना, कोरिया, मलेशिया, इंडिया एंड ऑल ऑफ दैट, I've studied all of them quite in detail. Many of these countries actually learned from our 5-year plans. Korean delegation आया हुआ था, they were very actively telling us कि you should follow your own 5-year plan. हमने आपका 5-year plan पढ़ के जो है काम कर लिया। देखिए, to put it simply, broken countries with broken economies can work, they can fix. Countries with broken human spirits cannot. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। जब आपकी ह्यूमन स्पिरिट टूटती है ना, नेशनल स्पिरिट टूटती है, उसको रिवाइव करना एक बड़ा लॉन्ग टीडियस प्रोसेस है। बिकॉज नेशन बिल्डिंग के अंदर इकोनॉमी इज़ वन कंपोनेंट, एंड मैं आज भी लिख के देने के लिए तैयार हूँ, इकोनॉमीज कैन फिक्स इन 3 to 5 years। ओवरऑल हो जाती हैं। आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। वी लिविंग इन अ डिजिटल एज, डिजिटल इकोनॉमी। दो आप अपने सेक्टर ठीक कर लें, यहाँ पे कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ठीक कर लें, आपकी इकोनॉमी बूम कर जाएगी 7% पे। आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है ना, हमारा कोई फंडामेंटल इशूज़ तो नहीं है कि हम गरीब हैं। वी हैव टॉप क्लास रिसोर्सेज, टैलेंट, एक्सेट्रा। सो बॉटलनेक्स आप रिमूव करें, यू विल फ्लाई। द बिगर प्रॉब्लम दैट वी फेस्ड ओवर द ईयर्स इज़ द प्रॉब्लम जहाँ ह्यूमन स्पिरिट को तोड़ा गया है। जो एक ह्यूमन है ना, जो एक इंसान है यहाँ पे इस मुल्क के अंदर, उसको ओवर द टाइम पीरियड, और ये पार्ट ऑफ द रीजन इज बिकॉज ऑफ करप्शन। लोग कहते हैं करप्शन प्रॉब्लम नहीं, ये नहीं। करप्शन का फंडामेंटल क्या है? आई वाज बाय द वन ऑफ दोज पीपल हु यूज्ड टू से दिस, मेक दिस आर्गुमेंट, रोट एन आर्टिकल, जी करप्शन इज नॉट अ प्रॉब्लम, टिल आई हैड अ बेटर सेंस एंड आई रियलाइज दैट करप्शन का मसला सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है। ओवर द टाइम पीरियड करप्शन जो है सोसाइटी के अंदर रॉट क्रिएट करके इट किल्स द ह्यूमन कॉन्शियसनेस। मेरिटोक्रेसी आपके वेड हो जाती है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस आपका टूटता है, एंड देन द लास्ट फंडामेंटल थिंग दैट डज इज बेसिकली इट टेक्स अवे द विक्टिमहुड ऑफ द पीपल दैट आर द एक्चुअल विक्टिम्स। और आपके मुल्क के जो विक्टिम्स हैं वो कोई और लोग बन जाते हैं हु आर एक्चुअली द करप्ट लॉट। सो माई प्रॉब्लम ओवर हियर राइट नाउ, द वेयर वी आर, विच इज़ वाई आई एम नॉट एबल टू इमेजिन व्हाट विल कम आउट ऑफ दिस। इसके आपकी पिछले काफ़ी सालों में कुछ पाकिस्तान के रीजन्स में तो डेकेड से आपकी इंसान के साथ जो हुआ है, जो स्पिरिट तोड़ी गई है, जिन पॉपुलेशंस की, माइनॉरिटी ग्रुप्स की, एथनिक ग्रुप्स की, औरतों की इस मुल्क के अंदर। आई मीन इमेजिन द वे वी ट्रीटेड अ वुमन इज़ नॉट समथिंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ। आपने की ह्यूमन स्पिरिट तोड़ी है उनकी, ठीक है।
और अब आके वो मेन स्ट्रीम हो गया हुआ है, जो कि अब हम फील कर रहे हैं ना कि अर्बन एरियाज में हो गया, बिकॉज द प्रेशर्स दोज प्रेशर्स दैट वर देयर इन द सोसाइटी जो पेरिफरी में थे, देव नाउ कम, द एम्पायर इज बेसिकली कमिंग टू द सेंटर. तो वो जो ह्यूमन स्पिरिट टूट रही है उसका नतीजा ये हो रहा है कि आप डिस्पेयर देख रहे हैं. यू टॉकिंग टू एवरी किड आई एम टॉकिंग राइट नाउ, हर कोई भागना चाहता है. आज से 10 साल पहले ये नहीं था, आज से 20 साल पहले नहीं था. 2011 में आई वाज ग्रेजुएटिंग कैम्ब्रिज, मैंने एक ना जॉब अप्लाई की बाहर, ना कभी सोचा सिटीजनशिप लेने का, ना कुछ और. केम स्ट्रेट बैक टू पाकिस्तान, यहाँ पे आके टीच करना शुरू किया, गवर्नमेंट के साथ काम स्टार्ट किया, बिकॉज एक बिलीफ था. हालांकि हालात तब भी बहुत खराब थे, पीपल्स पार्टी का दौर था, वर्स्ट ऑफ द क्राइसिस, बट तब तक ये था कि अच्छा यार अभी नून लीग ने भी आना है, पीटीआई ने भी आना है, एक ह्यूमन स्पिरिट. अब क्या है, पीपल्स पार्टी भी हो चुकी है, नून लीग भी हो चुकी है, पीटीआई भी हो चुकी है, अब रह का क्या है. और जो हुआ है पिछले 6 महीने में, 8 महीने में, जो इमेजेस इस सोसाइटी ने देखे हैं, मेरे ख्याल में वो इमेजेस शुड नॉट बी एक्सपोज टू एनीवन. और उसकी वजह से मेरे ख्याल में हमने सफ़र बहुत किया. सो वो जो एक साइकोलॉजिकल डैमेज बेयर किया है ना, उसकी वजह से ह्यूमन स्पिरिट टूटी है. एंड ह्यूमन स्पिरिट इज़ वन ऑफ द की रीजंस जो कि मुझे अभी लग रहा है कि हमारा इकोनॉमिक रिवाइवल बड़ा मुश्किल होगा. इकोनॉमिक रिवाइवल लोगों ने ही करना है ना. अगर आपके लोगों की विल तोड़ दी हुई है आपने, तो फिर पीछे तो कुछ नहीं रह गया. चल इकोनॉमिक्स को 2 मिनट साइड पे रखें. अगर मैं आपसे कहूँ कि chaos is imminent, which seems like it is, because economics... Collapse or chaos? Chaos already is here. I mean, it's the calm before the storm, in my opinion. I still think, by and large, the masses still don't understand कि क्या आ रहा है और किस लेवल पे आ रहा है. But personally, जब economic downturn आता है on the level that we're about to witness, and it's going to be unprecedented, उसके साथ हमेशा social unrest follows, right? साफ सी बात है, मेरा पेट भरा हुआ है ना, तो जो भी होता रहा है आई डोंट रियली केयर. बट जिस दिन मैं और मेरा बच्चा भूखे हैं, उस दिन देन इट्स ऑल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. एंड उसमें फिर चोरियाँ डकैतियाँ भी होंगी, उसमें रिसोर्सेज के पीछे जाके मर्डर्स भी होंगे. एंड देन दैट्स जस्ट द स्टार्ट, दैट्स द इकोनॉमिक ड्रिवन सोशल अनरेस्ट. बट जब आपकी रिजेंटमेंट्स बढ़ती हैं, तो रिजेंटमेंट्स के अंदर और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो हमने पार्टीशन के टाइम पे देखा, जो हमने 71 में देखा कि अगेन वो ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है जब वो आपस में फॉल्ट लाइंस आती हैं. तो a lot happens, and we've experienced that. We've had troubled areas, both in Balochistan and KP, बड़ा अरसा रहा है, and now we're seeing the resurgence of terrorism again happening in parts of Pakistan. So if things don't get any better, how do you see the chaos evolving? क्या आपको नज़र आता है? देखिए, chaos has been present here. 71 में भी chaos हुआ था. Throughout our history, chaos has been present. और bits and portions में periphery में चल रहा था वो. There are areas in Pakistan जो आपके कंट्रोल में थे ही नहीं, ना है. आपने क्या किया है, जो हमने एज अ सोसाइटी, इवन एट द डोमेस्टिक हाउस होल्ड लेवल पे ये किया कि whenever you've come across crisis, instead of talking and sorting them out, you've pushed them under the rug. Delayed response. हमारी जो एक, और उसका रीज़न है एक, I've spent about 11 to 12 years now in the policy sector, and I don't just work in the policy sector, but I also do philosophy on the policy sector, try to understand कि philosophy क्या है इनकी. एक फंडामेंटल जो philosophy है ना हमारे policy sector की, रूलिंग लीडरशिप की, वो ये कि they've somehow made themselves believe and make the people believe कि पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता. We are a chosen country, made in the name of Islam, developed by the heroes and all of that, and इसको कुछ नहीं हो सकता. So we will go through the crisis, but जैसे एक अच्छी मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है, आपकी भी हैप्पी एंडिंग होनी है. I seriously question this wisdom and this narrative, because if you read Quran, let's say Quran, since we believe in that, it's all about the collapse of the states. आद की कौम, लूत की कौम, नूह की कौम, समूद की कौम, तबाह हुई हुई कौमों का जिक्र है. एंड इट गिव्स वेरी गुड डिस्क्रिप्शन ऑन वाई दे वर डिस्ट्रॉयड. अनएथिकल थे, मॉरल्स ख़राब हो चुके थे, बट एक कोर एलिमेंट था कि जस्टिस नहीं था. ठीक है, गुर्बत से कोई कौम नहीं तबाह हुई हुई, जस्टिस की वजह से प्रॉब्लम थी. हमारे पास तो बाय इनहेरेंट बिलीफ अल्लाह ताला ने तो ले डाउन किया हुआ कि आई हैव डिस्ट्रॉयड नेशंस. सो ये जो बिलीफ है ना हमारे पॉलिसी सेक्टर के, यार हमें कुछ नहीं हो सकता, वी विल कंटिन्यू.
उसने हमें एक कंटिन्यूएट करते रहे है वो एक एक्सट्रैक्टिव पॉलिसीज़ को, कि जो पावर में आ रहा है उसे कहा यार मैं अपना काम पूरा कर लूँ और फिर अगला वाला देख लेगा, उसने भी कर लेंगे, चलते ही रहेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा. माई पर्सनल ओपिनियन इज दैट ऐसे नहीं चलता रहेगा. और ये जो बात की जाती है जी रेजिलियंस है, हम ये वो 80,000 जाने दी ये दिया, बट रेजिलियंस कौन है? नोबडी हैज़ टू बी रेजिलियंट, वी वर नॉट सपोज टू बी रेजिलियंट. ठीक है, अब रेजिलियंस के नैरेटिव के अंदर आपने जो चीज़ें कर छोड़ी हैं, वो बेचारा गरीब तो रेजिलियंट रहा, बाकी भाग गए आपके कुछ बार, कोई उन्होंने कर लिया. बट नेशंस डू कोलैप्स, बट व्हाट डज कोलैप्स लुक लाइक? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कोलैप्स क्या है? अफगानिस्तान इज अ कोलैप्स स्टेट, चल तो रही है, अफगानिस्तान नाम भी चल रहा है, अब वहाँ पे लोग पैसे भी बना रहे हैं, जिन्होंने पैसे बनाने थे तबाह के पैसे बनाए. सीरिया भी कोलैप्स है, डमस्कस में पार्टीज भी चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है वहाँ पे. लेबनान, लिबिया कोलैप्स हुआ, बट डू यू थिंक कि वहाँ पे सारे जो हैं वो भाग गए हैं, कुछ बैठे हुए हैं, कुछ पैसे बना. माई वरी इज दैट कि या तो आप कोलैप्स हो अच्छी तरह रज के, एंड देन यू rise out of the ashes. वर्स्ट केस सिनेरियो हमारे लिए ये होगा कि हम लोग अभी भी कोलैप्स हुए हुए हैं. बाय द वे, फंडामेंटली इफ यू लुक एट इट, लॉ, जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन इज एब्सेंट राइट नाउ. अगर हम इसी तरह कंटिन्यू करते रहे तो जो अफगानिस्तान में हुआ है, जो चीज़ें हुआ है, वो हम लोग स्लो स्टेप बाय स्टेप डिक्लाइन होंगे. वी लिव इन अ नेशन स्टेट एरा जहाँ पे आपके इंटरनेशनल प्रेशर्स बहुत हैं, फोर्सेस बहुत है, तो आप पूरी तरह से कोलैप्स नहीं होते. एंड दूसरा, हमारे भी जो है वो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड सोसाइटी है पंजाब में, KPK में, एंड ऑल ऑफ दैट. सो आपका जो सोशल अनरेस्ट उस तरह का है जैसा हम इमेजिन कर रहे कि लोग आएंगे, फायरिंग हो जाएंगी, वो प्रॉब्ली अफ्रीकन स्टाइल सिविल वॉर्स नहीं होंगी. मगर पॉइंट ये कि क्या कॉमो का मतलब वॉज द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग पाकिस्तान सो दैट कि हम एक कोलैप्स स्टेट में रहें, या हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन जो हमारी मुल्क की है वो पिछले 30-50 साल से ये है कि हाउ टू अवॉइड अ कोलैप्स. ये वर्डिंग है आपकी. द वर्डिंग इज नॉट हाउ टू बिकम अ प्रॉस्परस कंट्री, इट्स हाउ टू अवॉइड अ कोलैप्स. सो एज लॉन्ग एज योर नैरेटिव आपका ये रहेगा कि हमने कोलैप्स से बचाना है, तो कोई फायदा नहीं है. सो इवन एग्जिस्टिंग राइट नाउ व्हेन आई टॉक टू पॉलिसी, बिकॉज मैं उनको ये बात कहता हूँ कि देखें, यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी राइट नाउ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि आप एक तरह से कोलैप्स हो रहे हैं, रिफॉर्म्स आपने किए नहीं, आपके पास वाइल्ड अपॉर्चुनिटी है टू मूव फ्रॉम एनालॉग टू 5G डायरेक्टली. बजाय आप 2G 3G 4G पे जाए, आप एनालॉग टू 5G पे जाए. बट इज देयर विलिंगनेस, इज देयर ए थॉट बिहाइंड इट कि यार हम ये करना चाहते हैं? वो मिसिंग है. एंड जब तक वो आपका मिसिंग रहेगा, यंग लीडर्स नहीं आएंगे, यंग टैलेंट नहीं आएगा, तो वो मिसिंग. Why do you think that's missing? Do you think they're incompetent? Do you think they just don't really know कि यार क्या हम potentially कर सकते हैं? In my experience, a lot of them are. I speak to them and they're so disconnected from the reality and from what's happening around the world. कि कभी कभार वाकई लगता है कि यार we're just ruled by again incompetent people, for a lack of better word. So using your platform, I want to like bust this myth, because ये मैं जब भी कोई चीज़ ट्वीट करता हूँ तो नीचे कमेंट्स आ रहे हैं कि जी लीडर इनकॉम्पिटेंट है, पॉलिटिशियंस इनकॉम्पिटेंट है. यार मिथ नंबर 1, आवर पॉलिटिशियन इज़ नॉट इनकॉम्पिटेंट, आवर पॉलिटिशियन इज़ नॉट स्टूपिड. ये जिसको लगता है ना, I think only the stupid most people can make this argument. हमारे politicians, and I've had a chance to work with a few and I've been friends with a few, they're very smart people in their private businesses. How is that कि एक politician इतना smart है अपने private businesses में, इतना creative and doing दो नंबरी, and yet somehow he's so incompetent when it comes to running the government affairs. It's not incompetence. इनकॉम्पिटेंस जो है ना, ये एक मिथ है आपकी, दैट हैज़ वेरी कन्वीनियंटली मास्क्ड द डीपर लेवल रॉट, बिकॉज बाय ह्यूमन नेचर जो है ना, हम फॉरगिविंग है. वी आर रेडी टू फॉरगिव अ स्टूपिड इनकॉम्पिटेंट पर्सन, वी आर नॉट रेडी टू फॉरगिव अ करप्ट इंडिविजुअल. करप्शन जो है ना, सिर्फ पैसे खाए हैं उसको नहीं हम छोड़ेंगे. एक स्टूपिड है, किसी ने अहमक है, गलती कर दी, सो दिस इज़ अ वेरी कन्वीनियंट नैरेटिव प्रोपेल्ड बाय द सेम पावर होल्डर्स कि जी हम तो इनकॉम्पिटेंट है, हमें तो पता ही नहीं. हाउ इज़ दैट कि आपके प्राइवेट बिजनेसेस आपके टाइम इन द गवर्नमेंट स्काई रॉकेट कर रहे हैं 800% पे, और गवर्नमेंट का जो है रिजर्व्स नीचे जा रहे हैं. सो इनकॉम्पिटेंस आई डोंट एग्री, स्टूपिडिटी ऑफ द पॉलिटिशियंस आई डोंट एग्री. द थिंग इज़ दैट जो फंडामेंटल जो चैलेंज आ जाता है वो ये आ जाता है इसके अंदर के सिस्टम जो है ना हमारा पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, वो एक बड़ा डिसजॉइंटेड है. सो वेन एवर अ पॉलिटिशियन कम्स इन और वेन एवर अ ब्यूरोक्रेट इज देयर, ही रियलाइजेस कि जिस हालात में मैं अपना दफ्तर में आया हूँ ना, मेरा गोल ये है कि मैंने इस हालात में ही छोड़ के जाना है. अगर मैंने ज़्यादा अच्छा काम कर लिया तो मेरे पे इंक्वायरियाँ भी खुल सकती हैं ज़्यादा बुरा काम कर लिया तो
So the incentive to basically do nothing, and डाउज़म का है ना वो वे डू नथिंग, वो हमने लिटरली एब्जॉर्ब कर लिया है अपने अंदर कि कुछ करना नहीं है जिस हालत में आप छोड़ के. बट to do nothing over the long run basically means that you're doing something really really miserable. The net result is that कि आपका सिस्टम मूव करता नहीं है even if you're well intentioned. My core argument over is that our politician is not incompetent. Our politician is just not well intentioned when it comes to the national interest. But उसमें भी फिर politician को आप कैसे blame कर सकते हैं? Has anyone ever sat down in this country and defined our national interest? We are the only nation that I know of that is running without even doing a philosophical activity on what our national interest is. वाइब्स पे चल रहे हैं. इस पे चल रहे हैं और वो भी बस गट फीलिंग वाइब्स हैं, मूड हो गया. वही पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, जैसे आप लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो चलो नेक्स्ट टाइम वाला मौका देगा. बट नेशंस को बार बार मौके नहीं मिलते. हमारा गेम, मैं आई वोंट ब्लेम एनीवन कि यार कोई ये वेल इंटेंशन नहीं है. द इंटेंशन इज़ नॉट देयर बिकॉज वो एक कंपनी को रन करने के लिए आपको परफॉर्मेंस मेट्रिक होता है. परफॉर्मेंस मेट्रिक के लिए आपका पहले KPI बनाना ज़रूरी है. की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है नहीं तो आपने जज कैसे करना है? हमारे मुल्क के ना KPIs हैं, ना हमारे मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन हुआ हुआ है. विजन जो है वो होता किस तरह से विजन डिफाइन, आई टेल यू. बंद कमरों में 2-4 UN के कंसल्टेंट पकड़ के आप विजन बना लेते हैं पूरे मुल्क का, ना किसी से बात की ना किसी चीज़ की. वो लाहौर सेंट्रिक विजन ऑफ पाकिस्तान आपका डेवलप हो जाता है. और पेरिफ्रीज के अंदर जो है आपने टोटली आइसोलेट ही किया हुआ है लोगों को. आई मीन देयर आर पीपल लिविंग इन बलोचिस्तान, देयर विल पीपल लिविंग इन कैलाश जिनको हम अपने वो सिस्टम के अंदर इंक्लूड ही नहीं करते. सो नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन कर लें एंड वी विल सॉर्ट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स. Do you think if things continue the way that they continue, तो can we look at a crisis similar to Bangladesh वाला जो crisis है 1971 का? क्योंकि उस वक्त डायनामिक्स फ़र्क थे. There was a large piece of land in between. Honestly, to have a country completely disjoined was silly to begin with, and so it was a logical outcome. But in today's day and age, आपको लगता है कि अगर वो जो फेडरेशन है, जो लूजली हेल्ड फेडरेशन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एथनिकली आप कनेक्ट नहीं करते, लैंग्वेज में आप कनेक्ट नहीं करते, कल्चरली आप 10,000 डिफरेंसेस हैं. आपने एक नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट बनाया हुआ था जो कि बहुत रैपिडली इरोड हो रहा है इस वक्त. देखिए साफ सी बात है, अगर मैं इफ़ आई बिलीव इन पाकिस्तान एंड दैट बिलीफ इज़ कंटिन्यूसली शेकन टू अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वे कंप्लीट डिस्पोंडेंसी आ जाती है, तो मैं या तो बाहर निकलूँगा या मैं, और अगर मेरे पास नहीं है अपॉर्चुनिटी बाहर निकलने की, तो मैं फ्रस्ट्रेट होकर आई विल ट्राई टू फाइंड आइडेंटिटी एल्सवेयर. Right? And when I began to look for that identity elsewhere, so then I will see the rise of the nationalistic, pseudo-nationalistic voices that are coming out and are gaining a lot of traction now. And ये बड़े dangerous किस्म की जगह पर खुदा ना खास्ता जा सकता है. My fear, ये बांग्लादेश वाली बहुत ज़्यादा बात होती है सोशल मीडिया पे कि जी वी आर गोइंग टू बांग्लादेश सिनेरियो एंड ऑल ऑफ दैट. मेरा जो fear है ना वो ये है कि if we don't act right, Bangladesh scenario will actually be a good scenario, will be considered a good scenario, good case scenario. Because the worst case scenarios can be very, very problematic. One is that you continue going on this in a civil war like situation where Bangladesh तो separate था ना, वो तो independence declare कर दी. आपने कौन सी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करनी है यहाँ पे, एंड हाउ विल दैट वर्क आउट बीइंग नेक्स्ट क्लोज. हमने बांग्लादेश का कोई जंग नहीं लड़ी उसके बाद, नेवर हैड टू. ओवर हेयर यू इमेजिन लेट्स से कि जी 4 स्टेट्स आपकी डेवलप हो जाती हैं, the way that आप पानी पे भी लड़ेंगे, आप वीट पे भी लड़ेंगे, आप वो तो खा जाएंगे, एक्सेस टू वाटर पे भी लड़ेंगे. So, जो बांग्लादेश वाली बात है ना, वो तो हमारा गुड केस सिनेरियो होगा अगर हमने एक्ट ना किया. देखिए जो हमारे अभी फंडामेंटल इश्यूज चल रहे हैं ना, उसके अंदर हमारी बार बार ही बात हो रही है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी की, ये भी की. वी नीड टू रियली स्टार्ट थिंकिंग बियॉन्ड. पहले होता था ना पंजाब सेंट्रिक, आपने जब कैपिटल चेंज किया ना कराची से इस्लामाबाद, तो उसके बाद से आपका इस्लामाबाद सेंट्रिक पॉलिसीज़ हैं. द डिस्टेंस बिटवीन इस्लामाबाद एंड क्वेटा, इस्लामाबाद एंड पेशावर, इस्लामाबाद एंड तोरखम हैज़ ग्रोन way too much.
ठीक है, किलोमीटर्स में तो सेम है, मगर जो साइकोलॉजिकल डिफरेंस है ना आपका, वो इतना वाइड हो चुका है गैप बिटवीन इस्लामाबाद एंड कोयटा एंड इस्लामाबाद, दैट दोज बिकम अब नो गो एरियाज. सो जो भी गवर्नमेंट आती है ऑपोजिशन में पहले वो बातें करते हैं कि जी हम हक देंगे, ये देंगे, वो देंगे. द मोमेंट दे कम इनटू द गवर्नमेंट, कहाँ गए बलोच, कहाँ गए कोयटा, भूल भुला गया सारा आपका. अभी भी वही हालात हैं, पिछली गवर्नमेंट में भी वही हालात थे, उससे पिछली में भी वही हालात थे, ताहयात हो जाए. ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है. देखिए मैं वही बात, जो पहली बात ये थी ना कि poor economies countries can run with poor economies. Countries cannot run with broken human spirit. और अगर आपकी एक पूरे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की म्यूट पे लगा के उनकी स्पिरिट तोड़ी हुई है आपने, उसका फॉल बैक तो होगा आपका. वो हो नहीं सकता ना सस्टेनेबल आपका. फ़र्क सिर्फ ये है कि the victims become the oppressors become the victims, and the cycle of violence continues. And my fear is that what has been unleashed in the past couple of decades on the peripheries are now here in the center. और वो चीज़ जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे, और अगेन बार बार ये बात हो रही है कि इकोनॉमी इज़ आवर मेन प्रॉब्लम. इट्स नॉट. आई रिफ्यूज़ टू एक्नॉलेज कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला इस इकॉनमी एक फिक्सेबल चीज़ है, रॉकेट साइंस नहीं है. और बाय द वे रॉकेट साइंस होती तो वो हम फिक्स कर लेते हैं. हमारे पास रॉकेट साइंस किया हुआ हमने. हमारा फंडामेंटल चैलेंज है एक नेशनल इंटरेस्ट को डिफ़ाइन करने का, एक एलीट कैप्चर को पुश बैक करने का. आपको वही जो आज़ादी थी वो आपने ब्रिटिश से ली और आपने लोकल लेवल की ग़ुलामी फिर से कबूल कर ली. जब तक आप इन स्ट्रेन्स को या चेंज को नहीं तोड़ के आगे निकलते, रिफॉर्म नहीं करते सिस्टम, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते, तब तक तो आप कुछ सोच भी नहीं सकते ना आगे जाने का इस वक्त. राइट. पिछले दिनों मेरी एक ब्यूरोक्रेट साहब से बात हो रही थी, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर बड़ा हालात ख़राब हैं, आप देखें बहुत मुश्किलात हो रही हैं. तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा देखो कुछ नहीं होता मुल्क को, ये थोड़े मसले हैं, सेट हो जाएगा. कहा सर अच्छा, टेल मी व्हाट यू नो दैट आई डोंट नो. तो उन्होंने कहा कि देखो 22 करोड़ अवाम है, न्यूक्लियर पावर है, दुनिया आपको गिरने नहीं देगी. टू बिग टू फेल. यू टू बिग टू फेल. एंड और उन्होंने बड़ा रिकनसाइल करवाया मुझे. उन्होंने कहा देखें जी 22 करोड़ अवाम, मतलब दुनिया क्यों नहीं ब्रेक करने देगी, नॉट बिकॉज यूर वर्थ एनीथिंग टू द वर्ल्ड, बट बिकॉज यूर सच अ न्यूसेंस. कि 22 करोड़ अवाम अगर यहाँ पे फेल कर गई तो रेफ्यूजीज़ किधर जाएंगे, तो लोग तंग आएंगे. 22 करोड़ अवाम जो है उसका कंट्री अगर फॉल की तो उसके न्यूक्लियर एसेट्स किधर जाएंगे, क्या होगा, उसके ऊपर बड़ी टेंशन है. वो अगर यू नो इफ़ टेंशंस एंड वॉर लाइक सिचुएशन हैपन्स इन द बैकयार्ड ऑफ China and India, the rising powers of Iran even, so nobody can afford that. And so, you know, the world will come and protect you. What are your thoughts on that? Like I said, the policy world is almost a delusional world. They continue to think that we're too big to fail. Yeah. And I wrote this in my book recently, जो publish की थी, कि there is this mentality, basically, कि our foreign policy for the past 70 years is basically help us or I'll shoot myself. Your core foreign policy is that you have tried to blackmail based on a very toxic victim-like mentality to the world, that look, you're not even providing security, you're providing insecurity. That if you don't help us, I'll give you an example. 50s, 60s, 70s, Soviets are coming, help us. You know these people, these people with the beards, Islamist jihadists, we're the only wall between you and him, we liberals, these crazy peoples, so help us. You know the floods that happened, they're not going to remain over here only, it will be you next. So ये जो मेंटालिटी है ना आपकी कि विक्टिम कार्ड को प्ले करना, अगलों को डराना, ये 17 साल से आपकी फॉरेन पॉलिसी रही है. स्क्रिप्ट है आपका, जो मर्जी हो जाए आपने वही जाके प्ले करना है, लोगों को डराना है. But there is a limit to it, no? And they're not buying it anymore. They've called it bullshit. I've talked to my friends all over the world. The world is busy elsewhere. Yeah. There are There is a lot portions of the world that are working on technologies that are beyond space. There are portions of the world that are busy in Ukraine and all. There is no bandwidth for those countries to deal with your problem. Pakistan is constantly being said in the last 15-20 years, and this is something that should be painful for us and hurt us, because what our leaders have pitched us as. Our leaders for the last 70 odd years have been pitching us as a state which is on the brink of collapse. You help us or it will collapse, and they've not changed the narrative. Despite of the fact that they had so much to offer, and मैं पिछले दिनों ये ट्वीट भी किया हुआ था कि
पेपैल नहीं खोलना हमने यहाँ पे, जो कि हमें $1 बिलियन प्लस की एक टेक एडवांसमेंट दे सकता है, रेवेन्यूज जनरेट कर सकता है, मगर हम $100-200 मिलियन लेने के लिए हम लोग भीखे मांगते फिर रहे हैं. रीजन वाई यू डोंट वांट टू डू दैट इज नॉट बिकॉज कि आप में अकल नहीं है, लाइक आई सेड, दीज आर स्मार्ट पीपल, इज बिकॉज टेक्नोलॉजी एंड दीज न्यू इंडस्ट्रीज दे आर एंटी स्टेटस को. They challenge the control that these people have on the levers of politics, government and economy. आज आपके बच्चे मिलियनियर बनना शुरू हो जाए यहाँ पे, वो तो हक मांगना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे. So there is that fundamental challenge that they're faced with, and जब तक वो चीज़ आपकी नहीं आप रिजॉल्व करते तो तब तक तो आप कुछ नहीं कर सकते आगे. अगले इलेक्शन को आप किस तरह देख रहे हैं? बिकॉज राइट नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ द अनसर्टनिटी एंड द केओस इज, आपने कहा ना नेशन बिल्डिंग, तो वो आजकल बड़ी बात हो रही है कि यू नीड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यू नीड कंसेंसस. एट द एंड ऑफ द डे अगर लोग परेशान हो भी रहे हैं तो एक आसान तरीका ये है कि डेमोक्रेसी जो है ना बड़ी मज़े की चीज़ है कि आप 5 साल के लिए ना लोगों को ज़रा साइड पे लगा देते हैं. आप कहते हैं कि यार देखो अब तुम्हारी मर्ज़ी का बंदा आ गया है और वो जो है वो करेगा, वो कुछ करेगा या नहीं करेगा 5 साल बाद आके बताना. अभी तुम्हें मज़ीद खप डालने की ज़रूरत नहीं है. सो ऑब्वियसली इलेक्शंस are or are not, maybe अभी भी क्वेश्चन मार्क है, but maybe they're coming, and if they are coming, how do you see the coming elections? वही होगा जी, एक निज़ाम rigged. एक certain साहब से मैं मिलने गया पिछले दिनों पॉडकास्ट करने, ऑफ कैमरा उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने कहा कि यार ये तो अभी everybody knows that the next elections are going to be rigged, and एक certain साहब जो है उन्होंने आना है और वो प्राइम मिनिस्टर बनना है, बड़े पॉपुलर हैं वो. एंड इतने मज़े से उन्होंने बोला कि आई वाज जस्ट लाइक अच्छा तो यही निज़ाम है हमारा जिसमें वो हो रहा है. डू यू थिंक ये ऐसे ही है? सो पहली तो चीज़ इसमें ये कि या इलेक्शंस होंगे या सिविल वॉर होगी, डिसाइड कर लें व्हाट इज़ योर ऑप्शन. इलेक्शन करा लें, अच्छी बात है. और बाद में इलेक्शंस के बाद भी ये कोई नहीं है कि आपके नहीं, इफ द इलेक्शंस गो ब्लडी इट कैन जस्ट कॉज अ सिविल वॉर इटसेल्फ. सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ सिविल वॉर, बट आई मीन इट्स अ चॉइस बिटवीन इलेक्शंस और सोशल अनरेस्ट. सेन माइंड्स वुड से इलेक्शंस करवा लें तो अच्छी बात है, करवाने पड़ेंगे, हो जाएंगे. द सेकंड थिंग इज़ के इलेक्शंस ड्राइव किन बेसिस पे होगा. My hunch on this elections is basically that it's going to be around 3 things. One is technology, the other is youth, and the last thing is economy. Who has better tech adaptability, who's using better tech for comms, better tech for data analytics and all of that, definitely have a upper edge. Youth mobilization किसके साथ है, उसका एज है. इकॉनमी कौन कोलैप्स करा रहा है, वो आपका जब क्लियर हो जाएगा कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. सो इट्स नॉट अबाउट वन पार्टी और दी पार्टी, यू जस्ट हैव टू नोटिस के 2/3 विल बी विद द पार्टी जिसकी टेक एडेप्टेबिलिटी अच्छी है और जिसके साथ यूथ है. देयर इज एज सिंपल एज दैट ओनली. एंड आई विल गिव यू वन स्मॉल डेटा ऑफ दैट. you've added, if I'm not sorry, I have it in my phone, but I think we've added about 11 million voters since last elections, जो 18 से ऊपर आप हुए हैं. That's a lot of votes. Considering कि टोटल जो PTI को लास्ट टाइम मिली थी गवर्नमेंट बनाने के लिए वो 15 मिलियन 16 मिलियन वोटर्स से वोट से. पीपल्स पार्टी का 8 मिलियन थे, नून लीग के 11 मिलियन थे. तो 11 मिलियन तो आपने नया वोटर ऐड किया ना ऐसा. और वो यूथ है, टिकटॉक पे है, ट्विटर पे है, क्या देख रहा है, किसकी मोनोपली है वहाँ पे. यू जस्ट हैव टू लुक एट, आई डोंट हैव टू नेम द पार्टी, आप देख लें कि किसकी मोनोपली है यहाँ पे नैरेटिव्स पे, हु इज़ रिप्रेजेंटिंग द डिजिटल टेक्नोलॉजीज, हु इज़ रिप्रेजेंटिंग द यूथ, एंड द आंसर इज ऑलरेडी देयर. Do you think there's going to be change then? If elections are happening, if elections happen in a clean way, if the change of guard is accepted, do you think कि potentially change आ सकता है? Election is a way to bring the public representative, legitimate public representative on the table. But if your electoral system is still deeply flawed, where the power is not with the representatives of the public or the parliament, the power rests somewhere else. The policies, the public policies are made behind closed doors, not for public, for something else. तो आप 10 इलेक्शन भी करा लें, चेंज नहीं आएगी आपकी. और अगर चेंज आनी है तो उसके लिए इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है आपको, आप वैसे भी आ सकते. क्योंकि फंडामेंटल हमारी चीज़ है कि राइट नाउ इलेक्शंस क्यों ज़रूरी हैं, बिकॉज हमारा सोशल कलैप्स हुआ है, सोशल पॉलिटिकल कलैप्स है. इलेक्शन आपका सोशल पॉलिटिकल कलैप्स ठीक करेगा, इकोनॉमिक कलैप्स नहीं ठीक करेगा. इकोनॉमिक कलैप्स कब ठीक होगा, जब आपकी क्रिएटिव इनोवेटिव वेज, बिकॉज वी आर इन अ वेरी इनोवेटिव क्रिएटिव अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन. अब अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन आपके 1960s की स्क्रिप्ट से तो नहीं ठीक होने लगा ना. वी नीड अ लीडरशिप
which is young, vibrant, understands the digital economy. सर 70% technologies. आपकी जो नेशनल असेंबली थी पिछली वो 55 साल से ऊपर थी, तो आपकी कौन सी यंग यूथ विंग के देख लेना कौन है पॉलिटिकल पार्टीज के हेड 70 साल के लोग. सो देखिए इकोनॉमी चेंज करने का फॉर्मूला और है, पॉलिटिकल सोशल कलैप्स को चेंज करने का फॉर्मूला और है. सो इलेक्शंस वी नीड टू सेव द सोशल एंड पॉलिटिकल कलैप्स. फॉर द इकोनॉमी वी नीड टू invest in people and put people like those. I mean, for instance, I would love to see 35-year-old people leading the finance ministries, the BOIs and all of that have innovative and creative new methods. They can come and they can fail. That's fine. Right. But you can't allow again same old people, the financial wizards who have failed time and again, umpteenth time to come and somehow but then my opinion is that it's not about the player, it's about the game itself, right? And you can put those 35-year-olds and they could be the most innovative 35-year-olds, but the system is there's so much inertia in the system. It doesn't matter minister kaun hai. I really don't think it matters ke minister kaun hai. I think at the end of the day you go and you want to do an innovative project. उसका जो स्ट्रक्चर है वो टेंडर निकालो तो फिर ये करो तो फिर वो करो तो उसको घुमा के लेकर आओ, उस पर भी नहब पड़ जाएगी. दैट इज़ नॉट अ वे टू ड्राइव इनोवेशन. दैट इज़ गोइंग टू एट द एंड ऑफ द डे एंड इवेंचुअली एंड अप विद अ थर्ड पार्टी स्टूपिड इनएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन. प्राइवेट सेक्टर तो उस पर शायद टेंडर पे आए ही ना. आप कहते हैं कि यार मैं कोई मैसिव रिफॉर्म लेकर आता हूँ, मैं कॉस्ट कटिंग करता हूँ, मैं बंदे फारिग करता हूँ, आपकी एसोसिएशंस आके जो हड़तालें करेंगी. मुझे याद है लास्ट गवर्नमेंट में F6 में आप कभी भी चले जाएँ PTV के PTV 2-1 दफ़ा मेरा इत्तेफाक हुआ वहाँ जाने का. यार मैं जब भी जाऊँ हड़ताल कुछ ना कुछ वजह है, कोई ना कोई हड़ताल चल रही होती है वहाँ पर. और वो बंदा फारिग इतना बंदा है कि PTV तब भी चल रहा है तो इनको तो फारिग करें. आप इतने लोगों के हड़ताल में बैठे हुए जो है ना कर रहे हैं सारा. आप PIA फारिग करेंगे, ओहो नेशनल एसेट बेच दिया. मतलब आप क्या करेंगे? आप मुझे बताइए ना. आप ये थोड़ी है कि या तो आप मिडल ईस्ट स्टाइल एक फाशिस्ट गवर्नमेंट लेकर आए और फिर आप डंडे के तौर पे सबको बोलें कि यार भाई तू चुप करके एक्सेप्ट कर. और सच्ची बात है इंडिया में ये कह नहीं रही होना चाहिए, I'm just saying डेटा. इंडिया एंड बांग्लादेश के अंदर टू बी वेरी ऑनेस्ट बड़ी हार्ड लाइन किस्म की गवर्नमेंट्स आई हुई हैं. उन्होंने थोड़े बहुत जो डिसीजन ले लिए हैं वो उस खाते में ले लिए हैं. जो ट्रू जिसमें हम ना कि हर किसी को खुश करना है, हर किसी को खुश करते करते कोई खुश नहीं हो रहा है इस मुल्क के अंदर. सो हाउ डू यू लाइक आई रियली डोंट सी एनी वे टू रिफॉर्म इस तरह से कि आपने जी एक सिस्टमेटिक तरीके से आप चले, आपने इंक्रीमेंटली सिस्टम को नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो कुछ चेंज करना चाहेगी. ये तो 200 साल लग जाएंगे और बाय दैट टाइम द वर्ल्ड इज़ मूविंग सो फास्ट लाइक यू सेड ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी कि द डिस्टेंस बिटवीन अस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ गोइंग टू रैपिडली एंड रेडिकली इंक्रीज. So I know where you're coming from on this. Luckily, last couple of years में I had the chance to undertake reforms of one organization, Islamabad Policy Research Institute. 99 का बना हुआ था, एक ट्रेडिशनल बहुत ट्रेडिशनल थिंक टैंक, कलर से लेकर हर चीज़ उसकी ट्रेडिशनल थी. आई अंडरटुक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. वो कभी ज़िंदगी में रैंकिंग्स में नहीं आया था. पिछले 20 साल में 6 महीने के अंदर रिफॉर्म्स करके प्रोसेस कंप्लीट करके 7वें महीने में it was ranked 74 in the global think tank list published by the UPenn. And I wrote about the transformational journey of that. My personal opinion on this is very, very personal actually. People might not agree with this. Transformations of nations, economies, organizations all have the same formula. They don't take decades. In the digital age where we are, they don't even take 5 years. 3 साल के अंदर अंदर आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस हो चुकी होती हैं या उनकी नज़र आ चुकी होती है हिंट. बड़ा सिंपल मेथड था इप्री के अंदर जब चेंज किया. आई वॉन्टेड टू मेक इट अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन पावर्ड बाय इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, डेटा टूल्स, एक्सेट्रा विच वॉज डिजिटली वेरी savvy. What did I have to do? One thing. Change the HR. I hired young kids. I asked them कि जी मैं इप्री ज्वाइन करूँगा, मुझे फ्री हैंड दें कि मैं 5-8 बंदे अपने लेके आना चाहता हूँ, यंग बंदे मार्केट से अच्छे यंग ग्रेजुएट्स. एक तो अभी ग्रेजुएट भी नहीं होता उसको हायर किया. चेंज द फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ यंग डिजिटल नेटिव्स, आई डिडंट हैव टू ट्रेन देम इन एनीथिंग एट ऑल. सो वी नेवर फायर्ड एनीवन बाय द वे. द सेम पीपल हु वर देयर वर ऑलरेडी देयर. दे कंटिन्यूड. I took the reforms lead, brought in young people, helped with the reforms, makeover किया इप्री का.
उसकी प्रोडक्ट्स चेंज की, अपग्रेड किया, एग्जिस्टिंग जो ह्यूमन रिसोर्स था उनकी हमने एक्सटेंसिव ट्रेनिंग्स की, आर प्रोग्रामिंग के से लेकर डिजिटल के अंदर उनको डिजिटलाइज किया, उनको चीज़ों पे लेके आए, उनकी रिसर्च चेंज की. आई हैड वेरी गुड डेटा साइंटिस्ट विद मी. उनको मैंने रिसर्च टीम के साथ लगा दिया कि यार ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं इसके साथ तुम उनको डेटा भी प्रोवाइड करो, क्वांटिफाई करो इस काम को, रिसर्च को, क्वालिटी को बेहतर किया. IPRI got into the rankings. IPRI became a very premier organizations by the way. But at the end of the day, हमें Ministry of Foreign Affairs, Information Ministry, कोई ऐसा गवर्नमेंट का इदारा नहीं था जो हमें आके रिक्वेस्ट नहीं करता था कि जी प्लीज प्रोवाइड अस रिसर्च और वर्क विद अस इन आवर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. We did not, and this is something that I want to share first. I mean, that how much did it take us? How much money did it take us? We did not take an extra penny from the year before that. Same budget, same HR, सिर्फ जो 5 नए बंदे हैं, उस सारी same resources के साथ we were able to overturn the organizations because one thing was there. Somebody trusted a young leader to be at the helm and gave me full power to do whatever I wanted to do. So पहली चीज़ थी कि आपने एक बंदा लेके आए यंग. दूसरा, आपने उसको माइक्रो मैनेज नहीं किया, उसको आपने फ्री हैंड दिया. I had free hand to do anything. My bosses were very okay with that. Third thing, you were not resistant to the change. So जब वो हुआ तो शुरू में जब रेजिस्टेंस आई, IPRI के अंदर से कुछ मेरे साथ थे, उनको प्रॉब्लम थी, बट द मोमेंट दे रियलाइज कि यार इट इज़ एक्चुअली गिविंग अस डिविडेंड्स एंड इंक्रीजिंग अ प्रोफाइल, पीपल वर हैप्पी. सो इफ़ यू यूज द सेम, और मैंने इसको 3D फ्रेमवर्क का तब मेथडोलॉजी बनाई थी, डेटाफिकेशन, डिजिटलाइजेशन एंड डिसरप्शन, एंड आई स्टार्टेड विद डिसरप्शन बाय चेंजिंग द HR. सो इफ यू वांट टू चेंज द कंट्री, व्हाट डू यू डू? चेंज इट्स HR. आप यंग बंदे लेके आएंगे, आज डिजिटल नेटिव्स, पीपल हु आर यंग फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज, आज आप उनको एट हेल्म ऑफ अफेयर्स बिठाएंगे, वो पहला काम ये करेंगे, वो अपने ऑफिस तो चेंज करेंगे ना, मिनिस्टर ऑफिस. द मोमेंट द मिनिस्टर ऑफिस इज चेंज, ट्रिकल डाउन करती है आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी, बिकॉज हमारे यहाँ पे माइंडसेट बड़ा डिफरेंट डेवलप हुआ है. बॉटम अप चेंज नहीं आता है, ट्रिकल डाउन आता है. सो यू ब्रिंग इन द यंग पीपल, यू कम अप विद द प्लान, यू कम अप विद द फ्रेमवर्क ऑन हाउ टू चेंज द कंट्री. यार 2-3 साल लगते हैं आपका चेंज होने में, इट डजंट टेक मोर देन दैट, एंड वी हैव ट्राइड एंड टेस्टेड दैट. मुझे ये बताएं कि इन टर्म्स ऑफ रिफॉर्म्स जब हम बात करते हैं, आई वांट यू टू ऐड ग्लोबल पर्सपेक्टिव टू इट. You're seeing how there's a shift in technology coming, particularly with AI. अब जो projected है वो last 10 years by and large our lifestyles haven't changed much. Early 2000 to 2010 में iPhone आ गया, social media आ गया, a lot of new things came in, streaming services आ गई. Last 10 years में उसी को optimize किया, वो कैमरा बेहतर हो गया, स्क्रीनें अच्छी आ गई, apps आ गई, वो हो गया. This decade, I'm seeing a lot of very interesting work being done, which is going to radically change the human experience as we interact both with technology and use that technology to interact and interface with the society at large. उस कॉन्टेक्स्ट को मद्देनज़र रखते हुए आपने बोला एनालॉग से 5G पे आप जा सकते हैं. मैं कहता हूँ जी सब सेट हो गया. मैं कहता हूँ सब कल उठे और पाकिस्तान में सब ने कहा यार चलो लेट्स चेंज. What reforms can we undertake practically that can really help bring Pakistan to the 21st century? यार पहली तो चीज़ इसमें, इट्स अ वेरी लार्ज सब्जेक्ट, बट पहली तो मैं चीज़ करूँगा, देखें आपको पाकिस्तान में कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है. आपने कोई मोन्यूमेंटल चेंजेस नहीं करने पाकिस्तान को ठीक करने के लिए. आप 1-2 छोटी मोटी चीज़ें कर दें. लिटरली इट्स अ स्मॉल थिंग्स दैट मैटर. इन माई रिफॉर्म एक्सपीरियंस एट मिनिस्ट्री एंड एट IPRI, आपने कोई नया पहाड़ नहीं निकाल दिया था, कोई नया व्हील नहीं इन्वेंट किया था. आपने जो बॉटल नेक्स थी, जो छोटी मोटी चेंजेस थी, जब आप उनको रिमूव करते हैं, इट फॉल्स लाइक अ डेक ऑफ कार्ड्स. व्हाट डू यू नीड टू चेंज? बेसिकली पाकिस्तान में कंडूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं है. और क्यों नहीं है? आपके 58 NOCs चाहिए टू सेट अप अ कंपनी फॉर एनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू कम, जो कि रिड्यूस करके बाद में PTI गवर्नमेंट ने 37 कर दिया था. दुबई के अंदर यू कैन सिट इन पाकिस्तान एंड ओपन अ कंपनी इन दुबई. मैंने किया. आपने किया? 2 मिनट लगे. 2 मिनट लगे. आप एज अ पाकिस्तानी सिटीजन पाकिस्तान में नहीं कर सकते. द बैंकिंग सिस्टम्स ओवर हियर, इन द लास्ट गवर्नमेंट आई वाज पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर स्पेशल कमेटी ऑन बिग टेक विद डॉक्टर रसलान. मोईद यूसुफ वाज लीडिंग दैट. इट वाज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंसेस दैट वी हैड, दैट वी वर एबल टू गेट, बिकॉज हो ये रहा था कि एक तरफ मैं और डॉक्टर रसलान प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे होते थे कि सर वी नीड टू ब्रिंग टिकटॉक ओवर हियर इन पाकिस्तान, एंड हमने उसको डिजिटलाइज करना है, गूगल लेके आना एंड ऑल. एंड दूसरी तरफ PTA टिकटॉक को बैन कर रहा होता था. On one day, we were talking with TikTok to open up the office, and other arm of the state was banning it. What we realized, me and Arsalan, we realized is one thing, that the system is working in silos.
it's so disjointed that the government is working against itself. The state is fighting itself more than anything. Yeah. So we went to the Prime Minister and we set up this special committee on big tech, which Mohit was leading. Dr. Mohit Yusufli was leading that. And the first lesson that we learned from that was that nobody knew about the taxation system of Pakistan. The best part was FBR को भी नहीं पता था, SBP को भी नहीं पता था, and they were just shuttling between each other. वो कहते थे कि provincial क्या टैक्स पड़ेगा, फेडरल क्या पड़ेगा, टेक के अंदर क्या पड़ेगा. Nobody to this date has a clear-cut clue on how the taxation system works in Pakistan. I'm not a tax expert, but I've talked to people in FBR in the meetings, and they were said that, sir, ये तो हमारा काम ही नहीं, वो तो SBP को पता है. SBP would come and say, this is not our job, वो तो FBR को पता है. FBR वाले कहे जी हम तो फेडरल में जो provincial FBR है उनको. It was a circle, and there has been nightmare for big tech companies in Pakistan who want to set up क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रही कि how are they going to go the system. So our regulatory framework is one of the biggest problems. आप regulatory framework को आसान कर दें, NOCs कम करें. ये जो आपके $1-2 बिलियन आपके लिए जिनके लिए आप IMF के पास जा रहे हैं, या आपके this is a peanuts. We have every single thing. We don't have to create a new wheel. We don't have to go so advanced on AI or machine learning or anything. यार basics ठीक करने आप. All you have to do is fix the basics. NOCs को आप ठीक कर लें, taxation system को ठीक कर लें आप, और आपकी जो legal related issues हैं वो आप उनको ठीक कर लें. Regulations related. STZA, by the way, tried very hard. And I do think that you should bring Hamza Orakzai to the podcast. Great guy. He's been on the podcast before, by the way. Yeah. Okay, then that's good. It was a long time ago, though. Different time. I want to see what he can they've give you done. much more example. कि यार मसला ही आपका है कि आप NOCs के अंदर फंसे हुए. So एक तो वो हो गया. Now coming back to the other point of about how the technology in the world is changing. यार इसमें there is दो राय नहीं है. Okay, back in the 16th century, there was a very interesting court case. I think it was Pope Urban VIII at that time, and Galileo Galilei was charged for heresy and then imprisoned. House arrest हो गया था till his deathbed. I think 8-10 साल वो house arrest रहा था. The case was essentially that he argued that it's not the sun that revolves around us, it's the earth that revolves. And the evidence he presented was this telescope that he used. It took the Vatican 400 years in 1920 or 30 to accept that yes, he was right, and uska heretics ke naam se bahar nikala. If you look at closely what I'm talking about, it is basically that throughout centuries and ages and eons, our core beliefs, our core concepts have continued to change based on the new technologies that we have created by accident for some other purpose, and it serves something else. And by default that we wanted to figure out what is out there, and it has continued to evolve our idea of God, our idea about us, our idea about everything else, the nature and all of that. We're living in a very, very important world. जहाँ पे आपने जैसे बात की ना कि last 10 years. In the last 10-15 years, what has changed is that our concept of what technology is. हम लोग तो बड़े हुए ना इस concept के यार technology क्या है, आपने बटन दबाया नीचे से वो निकल आई, कॉफ़ी निकल आई. The very mechanical idea of technology. We must accept and embrace that technology is not mechanical anymore. That idea is gone. Technology has created its own new reality, its own language, its own ethos, its own whole vibrancy. Basically the technology has moved from mechanical to sentient machines, and this technology is not separate from you. Explain the idea of a sentient machine. So sentient machine is basically the one that all what we thought about the human, the consciousness, the thinking and all of that. The mechanical machine was initially you put an input, it gives you an output based on the code, mechanical code that you've deployed. आपने raw material डाला, product आ गई. Sentient machine is that you train it with data, and the machine can improvise, innovate, can give you something which you were not expecting. For instance, DALL-E. This new GPT models, LLM models, they're being creative. So the sentient machine is the one that is learning at a rate which was never there before. The famous 37 move with the Go. It broke every record, but it was funny because for the machine to get to the level of the Grand Chess Master took a couple of years, and then in the next 48 hours, it became 50 times better than what has ever been there.
So the machine has grown smart. Pace of growth has become Growth has become so accelerated that it is beyond control. Right. The machines, I'm not going to say think because those words are very loaded in, but if we are defined as humans, अगर हमारी definition of human की है कि हम सोचने वाले हैं, तो मशीन आपसे बेहतर सोच रही है, आपसे ज़्यादा सोच रही है, आप बिकॉज उसके पास कंपटीशन पार ज़्यादा है. हमारा भी तो कंप्यूटर ही लगा हुआ है ना, उसकी एक लिमिट है. मशीन हैज़ मच बेटर. सो व्हाट इज़ दैट मेक अस अ ह्यूमन देन? अगर मशीन ही सोच रही है, आपसे बेहतर काम कर रही है, आपसे चीज़, और अगर मशीन के अंदर ही हमने फीलिंग्स भी डालनी है, जो कि बाय द वे ब्रेन जैसे जैसे अर्थ होता जा रहा है, मशीन भी आपका सोच रही है, फील कर रही है, एंड ऑल ऑफ दैट. सो व्हाट इज़ दैट इज़ लेफ्ट ऑफ ह्यूमन? Are we creators then? Have we become creators? That idea that we had about the other and all, are we becoming that? So if we're becoming that, who are we? And then what is the nature and what is the creation? So I think we're living in a very, very exciting, and by much of this work, by the way, I do in the Silicon Valley. So ek leg वहाँ, एक leg यहाँ है. In that radical new world that we are in now, where a lot of what we know, for instance, the future of learning, इट्स नॉट गोना बी आप 4 साल की डिग्रियाँ पढ़ें, किताब पढ़ें. दिस इज़ रिडंडेंट. फ्यूचर ऑफ लर्निंग ये है, डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट, अपलोड इनटू योर ब्रेन. नाउ यू हैव अ 4 year of computer science degree. It's already there. It's going to happen. The future of work is the robots will work for you. ये जो ह्यूमन की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है? यही है ना आपकी कि आपने सुबह उठना है, काम करना है, पैसे कमाने हैं ताकि आप खाना पीना. वो लिमिटेशन आपकी खत्म हो जाएगी. द रोबोट्स विल वर्क फॉर यू. यू विल क्रिएट एन एंटायर रेस. इसी तरह आपकी फ्यूचर ऑफ एवरी सिंगल थिंग, द लाइफ, इस पर वही बात है ना. फिर फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट क्या है, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, एंड ऑल ऑफ दैट. इट विल चेंज. Which is why I continuously say this one thing, that Pakistan is at a very, very interesting juncture, because we're one of the countries that is on the verge of collapse. The traditional system is collapsing. अब हमारे लिए एक बड़ी ही कमाल अपॉर्चुनिटी है कि जो एनालॉग था ना, जो ट्रेडिशनल मैकेनिकल वर्ल्ड, हम उसमें से हट के हम कंप्लीटली सेंटिएंट टेक्नोलॉजीज पावर्ड बाय AI, पावर्ड बाय ब्लॉकचेन्स के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं. ओनली इफ यू जस्ट गो ब्लॉकचेन, यू कैन सॉल्व every single problem of corruption in Pakistan easily. Using AI, you can enhance your productivity to a level, और base level AI, कोई rocket science AI नहीं, base level AI के अंदर अगर आप train करना शुरू कर दें यहाँ पे लोगों को and all, you can enhance your creativity in arts and science and all. We have the opportunity to adopt very quickly as one of the early initiatives in the countries, in the world, because हमारे पास जो है वो we don't have the बदलना है ना. आपके पास निज़ाम बदलना है तो आप निज़ाम नया वाला बदल रहे हैं. वही वाली बात है कि a lot of people they have a running system, they're not going to risk going too fast. मेरा इसमें फेयर ये है कि जो लोग रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, जिन्होंने रिफॉर्म्स के ऊपर किताबें लिखी, वो रिफॉर्म्स जो करना चाह रहे हैं वो रिफॉर्म्स 1970s 80s में हो चुके हैं कंट्रीज़ में. तब टेक और थी. अब आप वो रिफॉर्म्स यहाँ पे करना चाह रहे हैं तो आप तो 1970s में स्टेप करेंगे, विच बेसिकली मीन्स 5 साल बाद 1970s विल बी प्री हिस्टोरिक एरा. आपने रिफॉर्म अगर करना है तो उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है, ब्रिंग द टैलेंट दैट कैन सी द फ्यूचर. रिफॉर्म यू नेवर डू फॉर प्रेजेंट, रिफॉर्म यू डू फॉर द फ्यूचर. हम लोग का क्या करते हैं, हम लोग प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स उठाते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश में 5 साल लगाते हैं. वी रियलाइज दैट ना वो प्रॉब्लम हो रही, ना वो सोल्यूशन हो रही. Sit now, imagine what the future 5, 10, 15 years will be like. And my personal belief is very simple. The future of work will change. The future of learning will change. Which basically gives, if I'm a education minister, I'll be seriously questioning the idea of why the hell do we need universities. हम ये public sector universities जहाँ पे दंगे फसाद हो रहे हैं, आप इनकी जो पूरी एक स्ट्रक्चर्स हैं इनको डिप्लॉय करें फॉर बेटर यूज़. चेंज द करिकुलम, चेंज द टेक्नोलॉजीज एंड ऑल ऑफ दैट. अब आप अगर 10 साल बाद अगर आप कहेंगे कि हम अब कंप्यूटर साइंस पढ़ा लें एज ए कोर इन द सब्जेक्ट, तो वो तो बहुत लेट हो चुका है ना आपका. हाँ. इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, आपने बोला AI इज़ गोइंग टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स. डू यू थिंक, ये बड़ा एक रेडिकल सा सवाल है, अगेन टिन फॉइल हैट पहन के मैं बोल रहा हूँ, बट डू यू सी अ फ्यूचर वेयर AI led governments are there? So what I mean by that is the weakness, as we've seen now, is human intervention by and large, where in a lot of ways, even in the developed world, we're seeing very clear fault lines, and it seems like people are not ready to move away from those fault lines. अच्छा, we're not at a time when we can afford wars. So normally होता ये था कि लोग जो हैं वो fault lines emerge करते थे, दुनिया पेंडुलम में जाता है, वो आपस में aggression आता है, fault line आती है, eventually आप distract करने के लिए this or that आप कोई ना कोई जंग कर लेते थे, और लोगों के हालात इतने बुरे होते थे कि eventually you had to be living in relative peace because you have that memory of a horrible time, and no matter how much disagreement you have,
it's still better than the war-like situation, right? So you wouldn't go beyond a certain war. But अभी हमें नज़र आ रहा है कि again Europe, Americas, you've got the left and right at each other's throats. You've got nationalistic governments rising all over the world. You're seeing again, जो मैंने पहले भी थोड़ा सा उसका वो दिया कि एक changing world order sort of आ रहा है. जब हम AI की बात करते हैं on the other hand, so AI is far more superior than anything that a human prime minister can manage or muster, or not just a prime minister and his cabinet. Honestly कुछ भी ना करें ना, बस हर दिन जो भी सवाल आ रहे हैं वो ChatGPT से पूछ लें तो आपके पास बेहतर आउटकम आना शुरू हो जाएगा. And that's just a model that started, right? So maybe 10 years from now it's going to be radically different. Do you see the rise of AI governments? But कुछ साइंस फिक्शन मूवीज़ में भी एक इसका आ चुका है कि गवर्नेंस जो है एक्चुअली वो एक न्यूट्रल उस पर चला जाएगा और हम सारे के सारे विल जस्ट बी, आई डोंट नो, पार्टिंग इट अप का तो मुझे नहीं पता क्या हो रहा होगा. बट देखें, AI गवर्नमेंट इज़ ए डेफिनेट फ्यूचर और उसका रीज़न है the fundamental flaw that we as humans have is our decision making has an inherent confirmation bias because the brain blocks the data which does not fit our emotional political tilt. Right. And everybody will have that irrespective of कौन कितना neutral दिखे, बोले, करे, हो ही नहीं सकता. हाँ. The AI does not carry the emotions, at least not right now. It's not designed for that way. For fundamental decisions that need to be made by the government, which the government does not do because they don't like the person's face or this and that in the bargain, I do think that, and Pakistan could become a champion in that, lead in that, is that you delegate the decision making on some fundamentals. कि यार पेट्रोल की प्राइस कितनी होनी है, it's a mathematical decision. It's not supposed to be a political, emotional decision, right? The decisions, the core decisions of the state, which includes the mathematical side of things, कि यार रेट्स क्या जाने क्या नहीं जाने, इन्फ्लेशन कैसी है कैसी, जैसे वो आप डेलीगेट करें मशीन्स को. Right. होनी भी मशीन्स के पास और वो होंगी eventually. The machines will dictate it if you want to survive the future. The rest is the vision of the future. So the human should relegate itself to what kind of creative future they want to build for themselves. And ये बात हम लोग नेशनल लेवल पे भी करते हैं बट इंडिविजुअल लेवल पे भी करते हैं, जहाँ पे when I was planning my career change, I mean I was working more on the policy side and then I realized that I want to move more on the tech side. The decision I made was essentially this, based on one thing: what does the future look like? What is my personally, what is my core talent? And what does the future look like? And based on that, I realized one thing, that I have a talent for analytical thinking and I have a good design sense. I can do this and this. I don't have a technical background, but I've done a lot of data work and all of that. And I understand technology enough to hire a team and do work. But what is the future? It's all tech. Okay, great. How do you then take a decision to transform yourself into that as an individual or as a nation? उस decision making के अंदर आपके लिए clarity of thought होना बड़ा ज़रूरी है on how you see the things unfold and when. अगर इस डे एंड एज के अंदर कोई बच्चा अंडर ग्रेड करने जा रहा है और वो टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं रख रहा, तो ही हैज़ अ रॉन्ग गाइडेंस एंड अ रॉन्ग मेंटरशिप. द वर्ल्ड वेयर वी मूविंग इज़ मोर एंड मोर टेक. इट्स नेवर गोना बी लेस. या तो हम ये कहना कि वर्ल्ड इज़ गोना बी लेस टेक. It's going to be more tech, more AI, more blockchains, which basically means that the nations will have to go on that path, the individuals have to be going on that path, which comes to one point that if you want to undertake any reforms, the reforms must be for the 21st century. इसके अलावा आप रिफॉर्म्स जो भी करने की कोशिश करेंगे वो फॉल बैक कर जाएंगे या रिडंडेंट हो जाएंगे. मुझे एक बात ये बताएं, आई एम गोना रैप दिस अप इससे थोड़ी देर बाद, बट मुझे ये बताएं कि ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आता है ख़ासकर डेवलप्ड वर्ल्ड की तरफ के, और पिछले दिन मैंने इसका बड़ा एक इंटरेस्टिंग ट्वीट भी पढ़ा कि प्रोडक्टिविटी हैज़ ग्रोन अ लॉट ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स एज विद इनोवेशन एंड वो सारा कुछ, but the humans are still working 8 hours, in some cases 10-12 hours, because the current capitalistic style of the economies and the governments and all of that
इज बिल्ट इन अ वे कि वो आपसे कहती है कि यार ठीक है, इफ फॉर एग्जाम्पल लेट मी रीफ्रेम दैट, मैं कहता हूँ कि यार लेट्स अज्यूम कि खाने जो आपकी एग्रीकल्चर है उस पर ऑटोमेट हो जाता है सारा का सारा. सो यू हैव दीज मशीन्स, बड़ी बड़ी मशीन्स आप लेते हैं, वो सुबह से शाम तक वो सोलर यूज़ करके वो घूमती रहती हैं और वो सॉइल को देखती भी रहती हैं और वो सारा प्लांट्स को करती भी. यू डोंट नीड एनीथिंग. वो फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड फार्म प्रोड्यूस निकाल कर छोड़ती हैं. मैं कहता हूँ आपके 4 मिलियन फार्मर्स वहाँ पे हैं इस वक्त, राइट? होगा क्या कि द वे दैट द वर्ल्ड इज़ गोइंग फॉरवर्ड, होगा क्या कि आखिर में वो एक बंदा जो है वो जाके या अ ग्रुप ऑफ अ फ्यू सेट ऑफ पीपल विल बाय ऑफ द लैंड, इन्वेस्ट देयर कैपिटल, गेट दोज मशीन्स, एंड देन नाउ जो फार्म लैंड या जो प्रोड्यूस थी जो कि 4 मिलियन लोगों में डिवाइड होता था उसका रेवेन्यू, वो अब 400 लोगों में डिवाइड होगा और 4 मिलियन से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि भाई तू जाओ जाके कहीं और कोई नौकरी ढूंढ, राइट? रादर देन सेइंग कि okay, now that it has been automated, so these people then do not need to work. They were part of an economy, they don't need to work. So maybe इसका पोटेंशियल लोग कहते हैं कि मिनिमम यूनिवर्सल पे टाइप सिचुएशंस आना शुरू हो जाएंगी, जिसमें वो आपको ये होगा कि यार ठीक है, आपको लेट से पाकिस्तान में 50,000 रुपया गवर्नमेंट, पाकिस्तान तो खैर इज़ नॉट एनीवेयर इन द रेस, बट इन द US फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी $5,000 सबको मिल रहे हैं और उससे आप जो है जी अपना घर ले सकते हैं और आप अपनी बेसिक ग्रोसरी कर सकते हैं और आप चीज़ें कर सकते हैं. अगर आपको उसके ऊपर बेहतर रहना है तो आप जाएं और जाके नौकरियां कर लें, बिकॉज नौकरियां थियोरेटिकली विल बिकम लेस एंड लेस एंड लेस एज द AI रेस बिकम्स वेरी वेरी फास्ट. एंड पर्टिकुलरली इसमें मैं ये कहूँगा जो रिडंडेंट लो वैल्यू नौकरियां हैं विच जनरली कंसिस्ट्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स दैट आर इन एनी इकोनॉमी. टॉप पे तो बड़े थोड़े होते हैं ना, इंजीनियर्स हो गए तो ये हो गए तो क्रिएटिव लोग हो गए वगैरह वगैरह. तो जब ये मेजॉरिटी लोग डिस्टर्ब होना शुरू होंगे, ऑटोमेटेड वो आपके सेल्फ ड्राइविंग ट्रक्स आ जाएंगे जी, आपकी पूरी ट्रकर्स की इंडस्ट्री ख़त्म हो गई. आपके जो है वो पिछले दिनों आई हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन विद अ लॉयर और मैंने उनसे बोला, मैंने कहा डोंट यू थिंक इट्स एटलीस्ट ऑन अ सेशन कोर्ट लेवल यू डोंट नीड लॉयर्स एंड यू डोंट नीड जजेस. इट्स लिटरली व्हाट इट ये है क्या, इट्स अ रूल बुक आपके सामने इन ल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पीछे के सारे केसेस आपके सामने जिसको आप एज प्रेसिडेंस यूज़ करते हो और डिफाइन करते हो कि वो, सो इट्स लिटरली वो वेट के साथ एक डिसीजन ट्री होता है. उसमें आप डालते हो तो उसमें लॉयर को आने की भी क्या ज़रूरत है? वो वेबसाइट खोले, बोले जी मेरे इसकी ये वो है, दूसरा अपनी साइड की डाले, वो एक AI जो है वो रन टाइम पे डिसाइड करेगी बेस्ड ऑन कौन सी वो है और उसके हिसाब से डिसाइड कर देगी. एंड आई थिंक आई जेन्युइनली बिलीव विल बिगिन टू सी a lot of this happen in the next few years. So in this context, do you think, एक आर्ग्यूमेंट ये आती है कि यार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद लोगों ने कहा था कि जब फार्म्स के ऊपर ट्रैक्टर्स आ जाएंगे तो फार्मलैंड से लोग निकले और अर्बनाइजेशन की तरफ चले गए और नई उन्होंने जॉब्स ढूंढ ली और इंडस्ट्री बनाना शुरू कर दी. तो एक तो लोग कहते हैं कि नहीं जी रीस के लोग के सारे लोग घुस जाएंगे एंड दे विल क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड इकोनॉमी. बट देन एक और साइड पे लोग कह रहे हैं कि नहीं यार, maybe we've done enough, we've extracted the world enough, and maybe at some point we will just say ठीक है यार, as people are becoming jobless, we're going to tax the people who are getting very very rich, and we're going to give minimum basic pay so that these people don't do anything. वो पार्टी करेंगे, वो पार्टी एक बेस लाइन पार्टी होगी कि यार जिस तरह यूरोप वगैरह में आपको सर्च किसी को एक बेसिक वो मिलता है तो वो बेसिक मिलता रहेगा. You wanna live it up, go and get a job. So we may have extracted the resources of this world. There are also other worlds out there where we will be soon, if not too late. इसके अंदर एक बड़ा important thing है which you're saying, and I want to build on that, is how the technology will change the work, this and this. But हम एक तरफ बात कर रहे हैं how technology will cut the jobs, do this and this. But on the other hand, we're using the framework of the capitalism, Marxism and all of that, right? One, we need a new framework. The philosophy है ना आपकी, Marxism, capitalism are from a particular time period which was the industrial revolution, right? The place where we are right now is an advanced AI revolution. It requires a complete different philosophy, a whole new theoretical model actually. One. Two, the moment the tech is being adapted into advanced technologies and other areas and all of that, it's not just changing the
nature of the work or the technology is also changing the human itself as well, right? So हम कह रहे हैं कि अच्छा the people will be out of work. The question is, would people even need to work? The future is not just changing the technology, the future is also changing the concept of money as well, right? Money एक concept है. वो concept क्या है? That it gets you something. Okay, what if the technology has created a new reality where what you need can just be at the push of the button? So let's say आपको खाना चाहिए ना, खाने के लिए एडवांस फॉर्म आ गई स्पिरुलिना, जो टैबलेट आप पॉप करें, इट गिव्स यू द एंटायर, and it can just reduce human dependency on the environment, on the farming and all of that. The moment you have that, you have broken a very important human limitation, right? You've transcended that. CRISPR, genome editing and all of that, debilitating किस्म की आपकी डिजीज़ हैं, कैंसर, ये डायबिटीज़ एक्सेट्रा 10 years 15 years down the line, actually अभी भी they will be irrelevant, they will not exist because you found a DNA that can be changed. डिज़ाइनर बेबीज़ आ चुके हुए हैं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. So CRISPR is already there. My point is that when we think of the future, we look at the technology as, oh, how is this gonna just be so problematic for us that it's going to destroy our livelihood and jobs, not realizing that while it is changing that, it is also removing your reliance and dependency and things that used to limit you. Diseases, poverty, food and all. आज आपकी spirulina, it becomes more advanced in form and all of that, वो आ जाती है, तो आपकी global hunger तो ख़त्म होगी ना, आपकी poverty is done. The moment we're able to develop a commercial level of intergalactical and interspatial आपकी आ जाती हैं, and we are able to develop something on Mars. By we, I'm not saying we as Pakistanis or we, me, by those who are doing the great work. तो वो जो सारा कॉन्सेप्ट है ना आपका यहाँ पे इन्वायरमेंट से लेकर एंड हाउ द ह्यूमंस आर सफरिंग एक्सट्रैक्शन, वो ख़त्म हो जाएगा. व्हाट आई एम बेसिकली कमिंग डाउन टू अ पॉइंट इज दैट द स्पीड ऑफ आवर ग्रोथ is exponential. In the next 5, 10, 15, 20, 25 years, inshallah हमारी ज़िंदगियों में we will witness things that were not even in the imaginations or the mythologies of our forefathers. And वो जब चेंज आएगी तो जो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, जो फ्रेमवर्क्स की हम बात कर रहे हैं, आई मीन हम लोग अभी क्या रो पिट रहे हैं, पाकिस्तान ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ये इररेलेवेंट होगा क्वेश्चन. We will be beyond all of that. The question for us, and we will end at that, I believe, is where does Pakistan fit in all of this, right? So I have one leg in Silicon Valley where I'm talking to some of the best people in AI who are doing fascinating work. Next morning I wake up and read the newspaper over here and I realize that where are we in that debate? Nowhere. The problem, the thing that the government, the top policy leaders, and somebody like me who works with the policy leaders, my goal is how do I get the policy leaders to bring in the talent in the people that start the conversations at the policy and the national level of where Pakistan fits into the tech revolution that is coming, AI revolution that is coming, because not dividends will not be shared by everyone. We have a choice right now, either we become a tech ghetto. अगर आपने मैट्रिक्स देखी हो तो आपको पता है ना, वो एक ghetto भी है उसमें और एक तरफ एडवांस भी चले. Are we going to become a tech ghetto of the world जहाँ पे आपका कोई टच भी नहीं करना चाहता, और वी वॉन्ट टू बिकम पार्ट ऑफ सम लेवल ऑफ कि हमको पेचकस प्रोवाइड कर दें, जैसे हम खुश होते हैं ना, हम फुटबॉल प्रोवाइड करते हैं फीफा में, दैट्स आवर बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, इट फील्स ग्रेट. हाउ डू वी गेट आवर फुट इन द डोर इन द एआई रेवोल्यूशन? वी कैन, वी हैव द एबिलिटी. द ओनली थिंग नीडेड इज एट द टॉप, जो भी नई गवर्नमेंट आती है, जो भी आती है, वो इस तरफ सोचे कि यार छोड़ें टेक्सटाइल, छोड़ें ये चीज़ें आपकी, गेट इन टू द बिजनेस विच इज़ फॉर द फ्यूचर. And we will be able to solve our problems, most of them. Do you think we will be? Do you have a lot of hope? We can become a top 10 economy in the next 5 to 10 years. We can be relegated to the annals of history. It's entirely on us. I still think that we have some time. और वो जो मैंने human spirit वाली बात की है ना, I think that's the most important. आज आप यहाँ पे election कराएं, legit government आए, on the people's approval, आप देखें human spirit एकदम से आपके ऊपर आ जाएगी. अभी प्रॉब्लम ये कि आपकी unrepresentative किस्म की leadership है that does not carry the public approval. Makes sense. Hussain, thank you so much for coming in and sharing all that insight. Particularly
मुझे ज़्यादा मज़ेदार सेकंड हाफ में आया, मज़ा सेकंड हाफ में आया बिकॉज वही वाली बात है, बड़ी अजीब सी है. आई बिन हॉपिंग बिटवीन दुबई एंड इस्लामाबाद रिसेंटली एंड बड़ी मुख्तलिफ दुनिया है. और वो जो लोग जो बातें वो मरीख पे जा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि यार हमारे पब्लिक पार्क सेफ हैं कि नहीं है. लाइक इट्स जस्ट different parallel worlds. It's two different parallel worlds and sometimes I get lost कि यार क्या सीन है. आइडेंटिटी क्राइसिस होता है आपको अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली. हम हैं तो पाकिस्तानी एंड टाइम यहाँ पे गुजारने की वजह से वो यू कांट लेट दैट गो. चाहे आप जितना भी चले जाएं बाहर, जो भी कर लें, तो दुख तो होता है. आई होप दैट वी आर एबल टू कम आउट. 5-10 साल और वेट कर लें, ये आइडियाज़ ऑफ आइडेंटिटी भी चेंज हो जाएंगे. 100%. Thank you so much for coming in and sharing all that insight. My pleasure to be here. Thank you. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो, अपने दोस्तों या के साथ ज़रूर शेयर करिएगा. नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताएं what do you think about the current state of Pakistan, the chaos that seemingly is ensuing right now and will be growing in the future. Do you agree or disagree with that premise? इसी के साथ साथ मुझे इसके बारे में बताएं यार, टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन के बारे में, आने वाले वक्त को आप कैसा देख रहे हैं. क्या आपको वाकई लगता है कि इकोनॉमी का निज़ाम, टेक्नोलॉजी का निज़ाम, लाइफस्टाइल्स ये चेंज हो जाएंगे बहुत ज़्यादा हमारे? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. इसी के साथ साथ नीचे हमने एक लिंक दी हुई है जिस पे we've redesigned and created a new TBT community, but it's based out of Discord. It's free for all as a base version, but it is monetized on certain levels, so you can check that out. वहाँ पर the entire thought process is that as the new economy develops in Pakistan, जैसे जैसे अब हम consumption से exports की तरफ जा रहे हैं, we need a globalized vision. And उसके अंदर as people begin to realign themselves, we're creating a community of leaders who are able to not only quickly realign themselves through helping each other, but also understand कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है और हमें exactly क्या steps लेने हैं individually to be able to be successful both individually and as Pakistanis. इसी के साथ साथ मैं उसके अंदर अपने हर पॉडकास्ट के बाद लाइव सेशन भी करता हूँ जहाँ पर आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस विद द गेस्ट एंड व्हाट आई थॉट अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक. सो यू कैन जॉइन द कम्युनिटी एंड चेक दैट आउट. यूट्यूब वाले लाइक का बटन दबाएंगे, ज़्यादा लोगों तक हमारी कॉन्वर्जेशन पहुंचेगी. इसी के साथ साथ यूट्यूब वाले बराए करम सब्सक्राइब भी कर लें सो दैट आने वाले एपिसोड्स के आपको नोटिफिकेशंस भी मिलें एंड हमें भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए. ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले एपिसोड्स का आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगी. बट एनीवेज, दिस वाज सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching and I'll see you in the next one.